everyone, welcome to the Mandeep Kaur Sidhu Show. Today we have with us architect Tara Singla. आज हम बात करेंगे आर्किटेक्ट्स के बारे में और उनके काम के बारे में। अक्सर ही हम कोशिश करते रहते हैं कि हमें कोई अच्छा आर्किटेक्ट मिल जाए। आज मेरी कोशिश है कि अच्छे आर्किटेक्ट से हम बात करें एंड इन केस वी हैव एनी क्वेरीज वी कैन ऑलवेज गेट इन टच विद। आइडिया आर्क इज द वेंचर विच इज रन बाय अतुल सिंगला एंड तारा सिंगला एंड दे आर वर्किंग ऑल ओवर द ग्लोब। अगर इनके सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करें लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ देम। देन they are working on one of the biggest residential project in Punjab, as well as they have built one of the largest sports complex in Punjab. Along with them, इनकी स्पेशलिटी है कि ये स्कूल्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग्स बनाते हैं। दे आर इनटू रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, दे आर इनटू कमर्शियल प्रोजेक्ट्स। आज हमारे जो क्वेश्चंस आर्किटेक्ट के बारे में है वो हम जानेंगे तारा सिंगला से। आज हमारे साथ हैं तारा सिंगला। तारा, वेलकम टू द मनदीप कौर सिद्धू शो। Thank you so much, Mandeep, for calling me here. I'm personally a very big fan of Mandeep, especially because whatever she has achieved in life, I think that is phenomenal. बहुत कम लोग हैं जो इतना सक्सेस अचीव कर पाते हैं इतनी यंग एज में। So you are the first women architect on my show. I think we have already completed 71 episodes of my show. Directly, normally I always ask questions to my guest speakers like कहाँ से उन्होंने शुरू किया और बचपन कैसा था, बट फॉर यू आई थिंक सारे ही मैं टू द पॉइंट क्वेश्चंस आज लेके आई हूँ। फर्स्ट आई वांट टू आस्क दैट हाउ डिड यू चूज आर्किटेक्ट एज योर प्रोफेशन? Long story short, I think बचपन में तो किसी को भी नहीं पता होता that what you have to become. But when it comes to reading the habits of a child, I think my mother and father read it very carefully and always thought that I was very good in organizing my stuff and placing things. And I used to have this huge doll house. Okay. इतना बड़ा हो गया था वो एक टाइम पे that I had incorporated my nanny's dressing table also in it. So all these little things, and with time my eye for detail, that little things को देखना, उनको पकड़ना, उनको analyze करना. So they thought that something with engineering and something that involves art, because I was very fond of drawing and colors. So that's how I think it all started. I think 12th के बाद you choose this field, is it? After 12th I chose engineering also. Okay. Because my mother wanted me to try all fields. So I gave engineering exam and along with that I gave architecture. Architecture मैंने एक ही college में apply किया था. करते करते what is destined will happen. So I got through architecture in the first go. I also got through computer engineering in Thapar, but my mother was of the view architecture is much better for girls. Then I went through it. Hanji. So I just want to tell my viewers that Tara is Jalandhar based and easily we can get in touch with her. So normally for all my questions when it comes to architecture, so I always ask her. So Tara, if we directly come to the kind of services you deliver, so what kind of projects you are doing? What kind of services? First, I would like to ask, what kind of services are you a full service agency when it comes to architect, or you are in interiors? What are your services? First of all, Mandeep, I'd just like to clarify. I think many people I have met, they feel architecture alag hai aur interiors alag hai. The point is both of them go hand in hand. Even landscaping planning goes hand in hand. We currently years that we have been working in Punjab, and we deliver all kinds of work. कि आर्किटेक्चर है, कोई प्लानिंग का काम है, कोई इंडस्ट्रियल डिजाइन है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डिजाइन है, ऑडिटोरियम्स हैं, स्कूल्स हैं, रेजिडेंसेस हैं। इंटीरियर डिजाइन में आप कह लो डेकोर, जो आपने कुछ भी रखना है, कोई भी आर्टिफैक्ट आपने घर में रखना है, से लेकर फर्नीचर डिजाइन तक, वी डिलीवर एवरीथिंग. It's a very huge area of work that we are catering to now. And with a lot of tie-ups in India and abroad, I think it becomes very simple to offer different kind of services to people. कि अगर उन्हें बाहर से कुछ मंगाना है, so that also we can do. Handcrafted, like if you have a lot of teak
लाइन, बहुत सारा टीक, बहुत सारा वुड पड़ा है आपके पास या बहुत सारा मेटल पड़ा है आपके पास, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, दैट ऑल्सो वी डू. सो वी ट्राई टू स्पेंड लीस्ट मनी ऑफ द क्लाइंट एंड डिलीवर द मोस्ट एज पर हिज एस्पिरेशंस की जो उन्हें पसंद है. Current project बात करें, so because most of my viewers they are from Punjab and or I can say the Punjabi community all over the globe. If we talk like what the current projects are going on in Idea, our company's name is Idea. I think I have skipped question, so that's okay. What are the current projects going on? The current projects that are going on is basically, Mandeep, we work pan India. So we do lot of residential and interior work pan India. अभी हमारे नागालैंड में कुछ घर चल रहे हैं. एक हमने अभी मेरठ में recently complete किया है, big farmhouse of an ex-MP. Then along with that, we are doing the largest family residence of Punjab. So that I think the area runs in about 9 acres. So that is one. Along with that, we do a lot of interior work, corporate work. So उसके अंदर उनके office design, furniture design, that comes there. And we are specialists in doing schools. वो सबको पता है कि जालंधर के सब अच्छे schools हमने ही किए हुए. तो उनका इंटीरियर डिजाइन भी हमने ही किया है. IB is one major project. So another school is coming up in Ludhiana. That is basically taking her time. What is your favorite part? My favorite part is actually, keenly observing what you want. If you are a client, so I'll try to understand what you want and go in a lot of detail in my projects. That is why I think interiors remains my forte. Interiors, landscaping, जिसमें finishing का काम आता है ना. That is our forte, and we do not repeat our designs. एक बार जिस तरह का फर्नीचर बना दिया उसको हम दोबारा किसी और प्रोजेक्ट में नहीं यूज करते. So innovation, goes along. Innovation, yes, innovation you can say is the heart and soul of our practice. Women architects वैसे बहुत कम होती हैं, नाम में भी कई बार ज्यादा होती हैं, बट एक्चुअल वर्क में फिर कम होती हैं. बट यू आर वन ऑफ द मतलब फेस की जो बिल्कुल एक एक्टिव फेस है. तो जब आप आर्किटेक्ट बन गए और साथ साथ आपने पढ़ाई भी आगे कंटिन्यू की, राइट, एंड मैरिज भी हो गई, किड भी हो गया, so how you carried everything gracefully, कि सबको हैंड इन हैंड कैसे आपने कैरी किया? I think किसी भी चीज को totally करने के लिए an arrogance is required, a very positive attitude is required that you have to do everything, कि ये तो करना ही है. I think वो attitude अगर आपके दिमाग में रहे तो आधी थकान या आधे issues तो आपके वैसे ही resolve हो जाते हैं. The other thing is that I started very late in Punjab. Actually, I belong to Chandigarh. Then I was stationed in London for quite some time. I worked in Delhi. Punjab में आए हुए मुझे लगता है, if I say so, it's been 5 to 6 years that I've totally worked in Punjab, and in that I have felt that thankfully I've got very very good clients, very intelligent clients, and ऐसे लोग होते हैं ना जिनसे बात करके आपको मजा आता है. I take a house or any project, be it my kid, be it studies, be it घर का काम, anything. I take it very seriously. Of course, I can understand कि पूरे दिन में कई दिन होते हैं जिस दिन कोई भी नहीं ठीक होता है. My point is just, get up and go to work. That is my mantra. कुछ भी हो, बस उठो, तैयार हो और चलो. काफी बार रीस्टार्ट का बटन हिट करते हैं, but all turns well, I think, in the end. Like it's all men's world, and especially in architect field, what I feel. मैंने तो women architect ये first आप ही मैंने देखी है. अब तक मुझे लगता है मैं 20 architect तो मिली होंगी जिसमें से एक आप है. So what difference you find, like how people take it कि women architect है या men architect है, या आपको लगता है कि कोई difference ऐसा है? उल्टा मुझे तो लगता है कि women को ज्यादा understanding है. Understanding, patience are different facets of a woman. And I think वो जो थोड़ा compassion है, हमारी जो ingrained passion है women में, उससे बहुत फर्क पड़ता है. That you actually think that if a person is having a problem in his house, कि उसका घर लीक कर रहा है और वो परेशान है, तो आप उसकी प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा समझ के उसको कैसे प्रॉपरली हैंडल कर सकते हो, वो आई थिंक women are most capable of doing it.
but I don't want to undermine men's contribution in the field. I feel कि अब ये men और women का barrier इतना रहा नहीं है. Men are equally understanding, they are very participative, they are very supportive of everything that a woman does in their household. So I think I should not discriminate कि women architect हूँ मैं या men या ऐसे कुछ. सबने इक्वली ट्रीट किया है, आप ये कहना चाहते हैं? आई थिंक आपको वैसे ही ट्रीट किया जाता है जैसे आप दूसरे को ट्रीट करते हो. Life is a mirror. So if I treat you well, and I don't think so there should be any problem. अभी तक तो आ ही नहीं है. I think So I'll just what pray. is your USP? What do you think that as a person or as an architect, how you are different than others? How you see the things? I had a very good teacher. There was a time in my life when my child was really small. Those time I used to paint a lot. So I had this guru and he told me one thing. He said, तुम्हारे काम में एक innocence है, एक truth है कि तुम बिल्कुल end तक लेकर जाती हो किसी भी काम को, उसको मत छोड़ना कभी. So I think a lot of truth, a lot of innocence is required in any profession. You actually try to help the other person. Money is not everything. So I think that is my USP. What high profile projects you have done, and when you approach such a kind of project, what is your thought process? How do you approach them? How you convert them? How you convince them? Because it's dream of everybody to click the high profile project. I think first of all I'd like to define high profile. High profile is everything for me. Even a wall is high profile for me because वो बंदा जो इतना ट्रस्ट करके वो वॉल मेरे पास लेकर आया है या एक रूम मेरे पास लेकर आया है and he is paying for that service. It's not free. So everything is a high profile thing. Our practice has worked for the past 18 years. उसमें LPU का नाम सुना होगा आपने. आप खुद वहां से ऐसे तो LPU लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से हमने शुरू किया था पंजाब में. उसके बाद नकोदर का हमने इंटीरियर्स किया अभी जो अंडर प्रोसेस है. बहुत सारे स्कूल्स किए हैं यहाँ पर. और हंसी की बात यह है कि हमने पैन इंडिया जो काम किया है उसमें हमने छोटे से छोटे घर भी किए. और आई थिंक जलंधर में हमारा सबसे छोटा प्रोजेक्ट है 40 स्क्वायर फीट क्रेविंग बॉक्स जो हमने लॉकडाउन के स्टार्ट में किया था. And that has now expanded into a bakery. Everything for us is high profile. I think that is also one of our selling points. एक कमरा कराओगे आपको उतना ही इम्पोर्टेंट लगेगा. अगर आप पूरी यूनिवर्सिटी कराओगे तभी आपको लगेगा कि हाँ हमें बहुत इम्पोर्टेंस मिलती है. Okay, सारे काम हमने दिल से ही करना है, मन से, शौक से. What changes you have observed in the field of architect जब से आपने होश संभाली है और अब कैसे ये फील्ड इवॉल्व कर रहा है? सो क्या चेंज इसमें पाया आपने? एक्चुअली जो चेंज है वो आई थिंक टेक्नोलॉजी से बहुत रिलेटेड है. पहले तो लोगों को पता भी नहीं था कि आर्किटेक्ट क्या होता है. दे यूज्ड टू गो टू अ कॉन्ट्रैक्टर एंड गेट देयर हाउसेस बिल्ड. जब तक उनमें गलतियां लोगों ने हाईलाइट नहीं करनी शुरू की, जब तक उनका नुकसान नहीं होना शुरू हुआ. आर्किटेक्ट सिर्फ डिजाइन नहीं करते, आर्किटेक्ट सेव यू लॉट ऑफ मनी. सो contractors and others will always, they are not technically qualified for design. So अगर आप डिजाइन करा रहे हैं अपना घर कॉन्ट्रैक्टर से तो आई थिंक गलती उसमें आपकी भी है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर की नहीं है. दूसरी बात यह है कि आजकल लोगों को बहुत अवेयरनेस हो गई है दैट हाउ अ गुड डिजाइन कैन मेक देयर लाइव्स बेटर. स्पेशली आफ्टर कोविड आई हैव नोटिस्ड दैट पीपल रियली वांट टू अपग्रेड देयर हाउसेस. अगर एक अलमारी भी है उसका डिजाइन भी अगर हमारे पास आता है तो वी डू इट इन फुल डिटेल एंड दैट simplifies your life because design is what rules the world. Of course इसके साथ दूसरे facets भी जुड़ गए हैं. वो तो किसी भी profession के साथ जुड़ गए हैं. That you should be good at social media, you should know how the websites work, you should know what your clients want, you should know how to make your presence online. So all these things, and of course a very good management of your team, keeping a positive attitude across the office. I think all these things are part of any business now. So of course हमारी एक क्रिएटिव फील्ड है तो आई थिंक इसमें एवोल्यूशन तो कंटिन्यूस ही है. आपको क्या लगा कि इससे टेक्नोलॉजी से दायरा बढ़ गया है, काम बढ़ गया है, कि मतलब उसमें क्या डिफरेंस आया है?
टेक्नोलॉजी इज अ वेरी गुड टूल इफ यूज प्रॉपरली. सो आप देखेंगे हमारे अपने प्रोजेक्ट्स में ही हमारा टेक्नोलॉजी के साथ बहुत क्लोज रिलेशन होता है. जो शेप ऑफ द बिल्डिंग है या जो उनके बाहर के फसाड हैं, आप आईवी देख लीजिए, कमल पैलेस, उसका बहुत ही मॉन्यूमेंटल सा फसाड है, बहुत अलग है. इट्स नथिंग लाइक अ रेगुलर बॉक्स. वैसे ही अगर आप मॉडल टाउन में शिखा मोहन स्टूडियोज देख लीजिए, वहां पर भी बहुत फिनोमिनल उनका फसाड है. अगर आप बड़े प्रोजेक्ट्स देखिए तो उसमें ऑफ कोर्स आजकल तो सिविल इंजीनियरिंग में भी यही चीज आ गई है. द सॉफ्टवेयर्स हैव मेड अ वेरी बिग कंट्रीब्यूशन. सो वी आर डूइंग spanless structures which are huge. They can accommodate like crowds of 20,000 people at one go. तो उसके अंदर उसको कैसे मॉड्यूलेट करना है, कैसे शुरुआत करनी है, how should be the design, what can we alter, what can we not. So technology is a great tool that way. Technology is also a very good visualizing tool. कि जैसे आपने कहा कि वॉल पर्पल होनी चाहिए और मुझे अगर लग रहा है कि पर्पल नहीं व्हाइट होनी चाहिए, उसका क्या डिजाइन होना चाहिए आप पहले ही देख सकते हैं. Another thing that we do is 3Ds जो हमारे होते हैं वो exactly same होते हैं जो आपका बनेगा बाद में जाके प्रोजेक्ट. So that is how close we get with technology. Which project has given you most satisfaction till now? I think almost. Everything. Each project has its own learning. एंड कोई भी क्लाइंट आई थिंक अच्छा बुरा ऐसे कुछ अभी तक आया नहीं मेरे सामने. ऑल क्लाइंट्स आर माय फेवरेट्स. I'm never really I make relations with people. I'm very good at talking. So I think all of them are very happy with me, as I understand. And all my projects are my favorite because ऐसी learnings है उनमें that they're very close to my heart. So who is your inspiration, from whom you are learning and whom you look up to, if we talk about your field? I will not go very far. I will not name an ideal, but my husband is also an architect. The way he works and the amount of patience he has, I think that is very good learning experience for me every day. And I think ये जो बात है just get up and work, मैंने उन्हीं से सीखी है कि कुछ नहीं होता, बस झाड़ो, जो भी चोट लगी उसको झाड़ो और चलो बस. So I think this I've learned from him to be resilient. And of course at the back of it आपके जो culture होता है, आपके घर का जो culture होता है, that also I think manifests somehow in your profession. So that is also very close to my heart कि जो मेरे mother father यहाँ और वहाँ मेरे घर पे जिनका culture था, both families have a very good culture. So I think उससे भी मैं काफी inspired हूँ. Now we have last question नहीं है, message हो गया, but I thought that let's have a message for the architects, but I have two kind of messages. So first I would like to like you to give a message to the upcoming architects. For the upcoming architects, I would say that one thing we notice कि architects जो होते हैं after they pass out, after they graduate, they feel we are architects. How can we learn from a person who is uneducated और वो कारपेंटर है, हम उससे कैसे सीख सकते हैं? हम बॉस है ना साइड पे, पर ऐसा नहीं है. बिल्डिंग एनी वर्क इज टीम वर्क. रिस्पेक्ट योर लेबर. Respect the people who are uneducated but more skilled than you. You will always learn from them. So this is, I think, learning is everywhere. So कभी भी अपने आप को एक डिग्री की वजह से इतना ऊपर नहीं सोचना कि किसी और से कुछ सीखने को ही ना मिले. पंजाब में ये नॉर्मल है people से कि तुम मुझे सिखाओगे. So it is like it's somewhere in every profession, but yes, we should be open for learning from everybody. So nice message. And then what would you like to say to people who are looking for an architect? How they should, step by step approach to a right person? Because ये तो मैं भी कर पाती, मतलब मुझे ये भी बड़ा टफ लगता है कि कई बार लोकेशन एक प्रॉब्लम है, कई बार आर्किटेक्ट कितना क्लोज है और उसके पास सारी चीजें हैं कि नहीं है. आर्किटेक्ट एक डिजाइनिंग तक है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग तक है कि वो इंटीरियर्स तक भी होगा या पीछे लेबर भी वो रेडी करेगा. तो हर आर्किटेक्ट का एक अपना स्कोप ऑफ वर्क है, तो नोबडी नोज कि इसका 100% मिल जाएगा कि यहाँ से 60% मिलेगा. सो पीपल हु आर लुकिंग फॉर एन आर्किटेक्ट,
how should they go about it? If you're looking for an architect, I think the first thing you need to see is कि क्या आपकी और उनकी आइडियोलॉजी मैच करती है. कि अगर मैं एक डिफरेंट जोन ऑफ प्रोजेक्ट्स करती हूँ और आप चाह रहे हो कि मैं कुछ और करूँ, आई थिंक मिलके ज्यादा ये चीजें क्लियर होती हैं. आपको जो करना है सबसे पहले इज यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर स्कोप ऑफ वर्क एंड योर बजट, क्योंकि इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स आती हैं. अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या चाहिए, तो आप कैसे समझ सकते हो कि जो दूसरा बंदा है उसको कैसे पता चलेगा. दैट इज वाई हमारे ऑफिस में जब भी हम काम करते हैं, हम प्लानिंग बहुत टाइम लगाते हैं. वी टेक ऑलमोस्ट 1.5 to 2 months on planning everything to the T. कि हमें बिल्कुल पता हो कि अगर हमने इतने बड़े ऑफिस में ये डेस्क रखी है, तो ये डेस्क कुछ ऐसी दिखने वाली है, कुछ इन लाइंस पे होगी, या हम बनाएंगे या हम प्रोक्योर करेंगे. हम दोनों चीजें ही करने को तैयार हैं. तो हम पहले ही जब ये एंड तक आई थिंक क्लाइंट को क्लियर कर देते हैं, तो उनको बेटर हो जाता है. साथ में आई वुड ऑलवेज से कि क्लाइंट्स को इतना प्रेशर होता है जब वो जाते हैं कि उनके कॉन्ट्रैक्टर्स कहते हैं कि बस ड्राइंगें ला दो और काम शुरू करें. वो नहीं ठीक है प्रोसेस. You have to be very very thorough with your layout. लेआउट को आप 10-12 बार इवेलुएट कीजिए और उसके बाद अपना मन बनाइए that yes you know this is the layout I want. उसको बार बार देखिए. अपने आर्किटेक्ट को बोलिए कि आपको एक स्पेशियल एनालिसिस दे, जो हम लोग भी देते हैं, कि एक वाइड ब्लॉक मॉडल होता है हर एक कमरे का, जिसको देख के आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि हाँ मेरा फर्नीचर ऐसे आ रहा है तो ठीक है. हाँ, क्योंकि कई लोगों को प्लान नहीं समझ में आता. साथ ही साथ आई थिंक इट्स वेरी गुड टू क्लियर अप. कई आर्किटेक्ट्स भी कई बार कम्युनिटी हैज डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, सो दे ट्राई टू मिसलीड यू. दे ट्राई टू टेल यू कि हाँ ये बंदा ही काम करेगा, या इसी से लो उसी से लो. देखिए, अ गुड प्रोडक्ट कैन कम फ्रॉम एनीवेयर. सो यू हैव टू बी अवेयर कि अगर आपको समझना बहुत जरूरी है कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं. अगर वो कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं. हर एक डिसीजन जो आप खुद लें अपने प्लान में, आपको पता होना चाहिए कि हाँ मैंने ये क्यों लिया. सो आस्क क्वेश्चंस. वो एक जागो वाली बात आ जाती है. तो उनसे पूछो कि हम इन कलर्स में क्यों जा रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं, कि मुझे तो ये पसंद है, मुझे तो ये पसंद है. बैठ के उनसे डिस्कस करिए. नेवर रश इनटू अ प्रोजेक्ट. अगर एक आर्किटेक्ट आपको ऐसे एक फाइल बना के दे रहा है कि हाँ ये आपका प्रोजेक्ट है पूरा, इसके अंदर अपने आप जाके करा लो, तो मतलब उसके पास इतना काम है, प्रॉब्लम वो आपको थ्रू एंड थ्रू आपके पास रहने नहीं वाला है इतनी देर के लिए. ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर जो भी आपको कह रहा है कि आप स्लो स्मूथ और मतलब अवेयर होके आगे चलिए और हम आपके साथ हैं, आई थिंक वो कैटेगरी बेटर है. बिकॉज आपको हर एक स्टेज पे टाइम मिलेगा उसको इवेल्युएट करने का कि हाँ मैंने अगर इतने बिजली के पॉइंट दिए हैं, ऐसे दिए हैं, या अगर मैंने ऐसे वाला फर्नीचर लिया है, तो हाँ मैंने बहुत सोच समझ के लिया यार. जैसे 3D व्यू हम देख लेते हैं पहले बिल्डिंग का, राइट? सो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, और ये कितना कॉस्टली है कि मैं पहले ही देखना चाहती हूँ कि सारा कुछ कैसा दिखेगा. जरूरी कितना है, और कॉस्ट एक्सपेंसिव कितना है, या इसके बिना भी काम चलता है? इसके बारे में क्या कहना? आई थिंक 3D तो आपको पहले दिखना ही चाहिए. और हमारे पास ये सर्विस इन हाउस है, तो हम इन हाउस देते हैं. कई आर्किटेक्ट्स जो बाहर से ये सर्विस को अवेल करते हैं, वो हो सकता है आपको सेपरेट चार्ज करें. हम भी अगर बहुत हाई लेवल का या बहुत ज्यादा काम आ जाता है, जब हमें भी आउटसोर्स करना पड़ता है. पर आउटसोर्सिंग में ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है दैट आफ्टर 1 or 2 चेंजेस वो हमारे ऊपर ही महंगा होने लग जाता है 3D, because then we have to pay people outside the firm. But definitely 3D is something that you should definitely take. एक 3D 360 भी आता है, जिससे पैनोरामिक व्यू होता है, कि जिसमें आप फिंगर से हिला के उसे एज अ रूम देख सकते हैं कि एज अ रूम वो कैसा लगेगा. हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको काफी सारी ये चीजें देखने को मिलेंगी. एंड जो रूम्स हमारे बनते हैं फिर वो उन्हीं पैटर्न्स पे बनते हैं. दे आर वेरी क्लोज टू व्हाट इज इन द 3D. So thank you so much, Tara, and I loved having questions with you. The pleasure is all mine. Thank you so much, Mandeep. Thank you so much for calling me here. Okay.
तो थैंक यू। ये थे हमारे साथ आज तारा सिंगला एंड वी डिस्कस्ड अबाउट आर्किटेक्ट्स एंड देयर वर्क। और हमें बहुत प्राउड फील होता है कि वुमेन जो हैं हर प्रोफेशन में आगे हैं। सो तारा सिंगला इज वन ऑफ द रिनोन्ड आर्किटेक्ट इन आवर रीजन एंड इन एनी फॉर्म यू नीड हर एडवाइस डेफिनेटली यू कैन गेट इन टच। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मनदीप कौर से शो।